Okay, so let's start today's class. So today I will start explaining the compression member. Okay, तो मैं आज compression member के ऊपर एक problem करवाऊंगी. तो मैं I am directly going to the problem first. So see in this problem what is it has said, just the way we have solved the problem of the tension member, we will try to solve it for our compression member as well. Okay, just so see what it has said, that determine the design axial load on column section ISMB 400 given that the height of column is 3.5 meter and that it is pinned. Also assume the following data like Fy 250 Newton per millimeter square, Fu 410 and E equal to 2 into 10 to the power 5. So these are the corresponding data given. So what in this question has said? देखो ये क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो ISMB 400 ये सेक्शन है, what will be the design load? What is design load here? डिजाइन लोड मतलब कि ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन को जब हम डिजाइन करेंगे तो ये सेक्शन का खुद का एक स्पेसिफिकेशन है. देखो जब डिजाइन करते हैं बेसिकली दो अप्रोच रहता है. देयर आर टू अप्रोच. वन इज say you are a member, say you are an individual member. Okay, so one approach is to find out your capacity, mean I will train you as per your capacity, so that will be your design strength for one approach. And the other approach will be I will try to design you corresponding to a particular load. जैसे कि से तुम एक बॉक्सर हो, ठीक है, मैं ट्रेनर हूं, तो मैं तुमको ट्रेन करना चाहती हूँ. तो तुम बॉक्सर हो तो तुमको मैं ट्रेन करूंगी. एक अप्रोच रहेगा ऐसा कि मैं तुमको ट्रेन करूंगी तुम्हारे कैपेसिटी के हिसाब से, और एक अप्रोच रहेगा कि तुम्हारा जो ओपोनेंट है उसको कैसे हराया जाए अकॉर्डिंग टू दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू. मैं तुमको एक तरीके से ऐसे ट्रेन कर पाऊंगी. तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि हमको इस मेंबर के लिए वो डिजाइन एक्सियल लोड डिटरमाइन करना है फॉर द हाइट ऑफ कॉलम दिस एंड द end condition is given, mean the support condition is given. So provided all the data, what is the capacity, mean what will be our design axial load that this kind of section will be able to sustain. सस्टेनेबिलिटी का तो यहाँ पे दूर की बात है, हम लोग डिजाइन करेंगे मतलब उसको और भी ज्यादा वैल्यू लेके डिजाइन करेंगे. अगर तुम्हारा कैपेसिटी मिनिमम कैपेसिटी 10 है तो तुमको डिजाइन करना चाहिए एटलीस्ट 15 टू 18 यूनिट तक. तो ये डिजाइन हमको करना है इस सेक्शन का वैसे. ओके, तो देखते हैं यहाँ पे द प्रॉपर्टीज ऑफ ISMB 400 डेप्थ ऑफ सेक्शन. सो लेट मी जस्ट गेट इन. Okay, fine. See, in table 1, this is in page SP6 page 2. Okay, here see, here ISMB 400 is given. Okay, so all the corresponding datas are given in here. See, all the corresponding datas are given. These are the datas corresponding to ISMB 400. Just a minute. तो यहाँ पे ISMB 400 के कॉरेस्पॉन्डिंग सब डेटा दिया गया है. तो यहाँ पे डेटा क्या क्या है? वेट पर मीटर, सेक्शनल एरिया, डेप्थ ऑफ सेक्शन, विड्थ ऑफ लेंथ, थिकनेस ऑफ वेव, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टुवर्ड्स एक्स एंड वाई एक्सिस, रेडियस ऑफ जायरेशन टुवर्ड्स एक्स एंड वाई एक्सिस. तो ये सब डेटा दिया गया है. तो वी विल एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम दिस पार्ट. ओके, so here flange thickness TF is given in the table 1, thickness of web, flange width,
cross sectional area, all are given in this way, this value. See, this is in centimeter square, and after converting it in millimeter square we will get in this approach. तो ये हमारा जो सेक्शन है, ये ISMB 400 का, this H is our 400, our TF flange thickness, that flange thickness is given as 16, thickness of wave is 8.9, mean this thickness is 8.9, and the cross sectional area is given to be this is also given in here. Okay, and the corresponding radius of gyration we will take that from in this place, from this place, mean correspond from this column RXX and RYY corresponding to this ISMB 400. Okay, find out that there will be given Z axis. Okay, so here from quote that Z is nothing but that X axis only. Okay, so don't get confused with it. Just a minute. Okay, fine. So now see, now जैसे कि हम कंप्रेशन मेंबर को स्टडी कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या हमारे कंप्रेशन में कौन सी फेलियर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है? दैट इज बकलिंग. Due to compression, buckling failure is the main criteria, I mean very important failure which can be observed in compression members. Tension में हम लोग क्या किए थे? Yielding in gross sectional area, rupture. मतलब कि देखो, अगर टेंशन तुम एक कोई भी मेंबर किसी का से you are trying to pull something, some member, तो वो कौन कौन से मैकेनिज्म में फेलियर हो रहा था? एक था कि अगर ग्रॉस सेक्शन एरिया पहले यील्ड कर जाता है, वो एक. दूसरा क्या था? रप्चर, मतलब पूरा एकदम टूट के बाहर आ जाता है. एंड द थर्ड वन वाज ब्लॉक शियर, मतलब पूरा होल जो पार्ट ऑफ द ब्लॉक, पूरा टोटल ब्लॉक शियर आउट होकर बाहर आ जाता है. ये तो टेंशन की वजह से फेल होता है. अब बताओ कंप्रेशन में क्या मतलब ब्लॉक शियर हो सकता है? मतलब कि पूरा जो टेंशन की वजह से कंप्रेशन मेंबर में तुम्हारे कंप्रेशन के वजह से क्या कोई ब्लॉक शियर हो सकता है? मतलब ये एक से मेंबर है, दिस इज अ मेंबर. ओके, तो यहाँ पे ऐसे फोर्स आ रहा है, तो इसके वजह से क्या यहाँ से ऐसे टूट के बाहर निकल के आ सकता है कोई भी मेंबर? ऐसे बाहर निकलने के लिए तो हमको पुलिंग इफेक्ट चाहिए ना, मतलब ऐसे कोई ऐसे खींच रहा है तभी ना एकदम पूरा सेक्शन बाहर निकल के आएगा. तो हमारे कंप्रेशन में सबसे मतलब इंपॉर्टेंट फेलियर क्या है? वो है बकलिंग. मतलब तो हमारे कंप्रेशन में जो क्या है फेलियर मैकेनिज्म, ये बकलिंग होता है. तो बकलिंग का भी बहुत सारा क्लास डिवाइड किया गया है. तो आईएस कोड टेबल 10 में है ये. लेट्स जस्ट गेट इनटू दैट टेबल 10. सी इन टेबल 10 हियर द बकलिंग क्लास ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन. तो देखो, ये हमारा टाइप ऑफ सेक्शन अभी क्या है? रोल डाई सेक्शन. वेल्डेड नहीं कर रहे हैं हम लोग, हॉलो सेक्शन नहीं कर रहे हैं, वेल्डेड बॉक्स सेक्शन नहीं कर रहे हैं, चैनल एंगल टी, सॉलिड सेक्शन, बिल्ट अप मेंबर, दीज आर ऑल गिवन हियर, बट वी आर डीलिंग विथ दिस रोल डाई सेक्शन, राइट? तो यहाँ पे हमको ये लिमिट्स दिया गया है. देखो, H by BF mean that height divided by this. If this is greater than 1.2 और अगर TF 40 मिलीमीटर से छोटा या फिर इसका इक्वल है, तो हमारा बकलिंग क्लास का कैटेगरी इन Z एक्सिस में A रहेगा और Y एक्सिस में B रहेगा. ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं.
हमारा जो H क्या है 400, B क्या है यहाँ पे 140, देखो यहाँ पे सब डेटा हम sp6 से लिए थे, B 140, तो आफ्टर डिवाइडिंग दैट वी आर गेटिंग 2.86, मीन this is greater than 1.2, so this is coming in this category. And TF, what is our TF? TF is 16, which is less than 40 millimeter. This is less than 40 millimeter, right? तो ये कैटेगरी के अंदर तो हमें ये कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू लेना पड़ेगा। ओके, तो Z एक्सिस में बकलिंग क्लास A लगेगा, Y एक्सिस में हमारा बकलिंग क्लास B लगेगा। ओके, सो considering all this, hence we should use buckling curve A about Z axis and B about Y axis. अब क्या हम कंप्रेशन जब कर रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्लास में कॉलम में, रिमेंबर वी वेर इंट्रोड्यूस्ड विद द टर्म ऑफ इफेक्टिव लेंथ, राइट? इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ पे हमारा देखो ये K क्या है? This K is a constant which depends on the support system of the column. मतलब कि हमारा कॉलम कौन कौन से कैसे सपोर्ट सिस्टम में लाई कर रहा है। मतलब देखो, अगर कंप्रेशन यहाँ पे तुम कंप्रेस कर रहे हो, पर अगर यहाँ पे ये वाला सपोर्ट फिक्स्ड है और ये वाला सपोर्ट अगर थिन है, तो हमारा जो डिफ्लेक्शन का पैटर्न वो चेंज हो जाएगा। मतलब if this is fixed support and this is say hinge support, okay, तो ये हमारा अगर अब ऊपर से कंप्रेशन आएगा तो ये कैसे रहेगा? ये ऐसे कंप्रेस नहीं होगा। अगर यही सेम कॉलम से अगर बोथ साइड फिक्स्ड है, तो ये अगर कंप्रेशन आएगा, कंप्रेशन फोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये हमारा फेलियर पैटर्न ऐसे चेंज हो जाएगा। मतलब क्या? फेलियर बकलिंग होगा, दैट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सपोर्ट सिस्टम। तो अब सपोर्ट सिस्टम के वजह से हमारा इफेक्टिव लेंथ क्या चेंज होता जाएगा, राइट? इजंट इट? हमारा इफेक्टिव लेंथ चेंज होता जाएगा। तो अब हम थियोरेटिकली जो पढ़े थे ऑलरेडी इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एज पर यूलर्स थ्योरम, so we have studied there a theoretical value of our effective length, but there are also a practical approach of considering effective length has been given in IS code. Zoom it out, which is given in this table 11. Okay, in table 11 see our different kind of support system is given here, possible number of support systems. See, at one end if translation and rotation, at other end translation and rotation, मतलब के ये एक एंड में ट्रांसलेशन या रोटेशन पे अगर ये ट्रांसलेशन भी रिस्ट्रेंड है, अगर रोटेशन भी रिस्ट्रेंड है, और एक दूसरे एंड में ट्रांसलेशन फ्री है और रोटेशन फ्री है, तो हमारा इफेक्टिव लेंथ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये रहेगा 2.2। यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 विथ L विथ योर ओरिजिनल लेंथ। तो हमारे यहाँ पे लेंथ कितना दिया गया है? हमारे यहाँ पे तो लेंथ 3.5 है और हमारे यहाँ पे पिन एंडेड है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये हमारा ये वाला कैटेगरीज पे आ रहा है। सी, दिस इज पिन जॉइंट। So the effective length that K should be taken as 1. This, see this 1.2, 1, 2, these are all the value of K. See here that our KLY or KLZ will be our 3.5 only, because 3.5 into 1 will be 3.5. That is why this has taken to be 3.5 meter. अब देखो यहाँ पे एक नॉन डायमेंशनल स्लेंडरनेस रेशियो जो कि हमारे 7.1.2.1 में है। अब नॉन डायमेंशनल स्लेंडरनेस रेशियो मतलब क्या? नॉन डायमेंशनल मतलब कि हम जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसका कोई यूनिट नहीं रहता है। इट इज नॉट, यू कैन, जैसे कि हमारा पाई, द वैल्यू ऑफ दैट, दिस इज न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर मीटर। This is a unitless approach. That non-dimensional approach has to be incorporated with a dimensional approach. देखो ये सब
यूनिटलेस मतलब जो कि डेटा है या फिर जो हमारा ये जैसे कि लैम्डा, जैसे कि हमारा फाई, इन सब वैल्यूज से हमको एक यूनिट यूनिट इक्वेशन पता चल रहा है. दैट मीन दैट एफसीडी इज नथिंग बट आवर स्ट्रेस इन that is our डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस. तो डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस का जो वैल्यू ये डिपेंड कर रहा है टोटली ऑन दिस नॉन डायमेंशनल वैल्यूज. ओके, तो ये हमको कहां से पता चलेगा? टेबल 7 एंड सी. एकदम हम जहां पे टेंशन मेंबर का जो ब्लॉक शेयर वो वगैरह था, उसके एंड होने के बाद से ही हमारा डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर चालू हो जाता है. देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, that common hot rolled and built up steel members used for carrying axial compression, right, usually fail by flexural buckling. फ्लेक्सुरल बकलिंग मतलब कि जैसे कि मैं अभी दिखा रही थी कि ये एक कॉलम है, तो ये अगर ऐसे कंप्रेशन आएगा तो ये क्या, ये बेंडिंग ऑकर हो रहा है एज अ बकलिंग फेलियर. So flexural buckling, the buckling strength of these member is affected by residual stresses, initial bow and accidental eccentricities of load. मतलब कि इन सब कारणों के वजह से हमारा रेसिडुअल स्ट्रेस से इफेक्ट होता है मेंबर. ये एक्सीडेंटल लोड या फिर इसेंट्रिसिटीज ऑफ लोड एज इसके वजह से. To account for all these factors, the strength of members subjected to axial compression is defined by buckling class A, B, C और D. तो यहाँ पे हमारा जो डिजाइन हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? We have to get the design axial load on this column. तो हमको बेसिकली ये निकालना है, ये PD, the value of PD we have to get. Okay, so this is represented with A, that area into FCD. Now see, that area is nothing but the effective sectional area as defined in this, and FCD is the design compressive stress obtained here. तो अब हम लोग FCD देखो दो तरीके से निकाला जा सकता है. एक है कि इस फॉर्मूला से तुम लोग निकाल सकते हो, और एक है वो टेबल से निकाल सकते हैं. तो आज शायद मैं ये फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं वो ही दिखा पाऊंगी, अगर टाइम रहेगा तो मैं ग्राफ से दिखा दूंगी. तो एक आई मीन टेबल से दिखा दूंगी. तो देखो ये दैट एफसीडी इज बेस्ड अपॉन these values, mean fy divided by gamma m naught divided by that phi plus phi whole square minus lambda whole square whole bracket 0.5, mean मतलब कि ये रूट ओवर में है एक्चुअली. ओके, that equal to this is a non dimensional factor. ये देखो, ये नॉन डायमेंशनल फैक्टर को बोला जाता है स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर. मतलब कि कुछ अमाउंट का ये स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है. वो स्ट्रेस रिडक्शन अमाउंट वो एफ मल्टीप्लाइड विद एफ वाई डिवाइडेड बाई गामा एम नॉट विच इज लेस देन इक्वल टू एफ वाई गामा नॉट. तो ये कंडीशन हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे. तो पहले एफसीडी ये निकालना पड़ेगा. अब look at here that phi is also dependent upon these values alpha and lambda, and this lambda is depending upon that fy divided by fcc. that fcc is nothing but our Euler buckling stress. जैसे कि हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में ये फॉर्मूला पढ़े थे ना, पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय केल होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो ये सब एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है. तो ये हम लोग सॉल्व करते हैं पहले. आज देखो, नाउ अबाउट जेड एक्सिस, लेट अस जस्ट सॉल्व अबाउट जेड एक्सिस फर्स्ट. तो जेड एक्सिस में हमारा जो बकलिंग क्लास क्या था, दैट वाज ए. आवर बकलिंग क्लास वाज ए. ओके, सो corresponding to that A, see
वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा फर्स्ट। ये अल्फा कहां से मिलेगा हमको? टेबल 7 से। देखो ये है टेबल 7। दिस अल्फा इज ऑल्सो टर्म्ड एज इम्परफेक्शन फैक्टर। देखो यहाँ पे इम्परफेक्शन फैक्टर को लिया गया है, कंसीडर किया गया है। यहाँ पे स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर को कंसीडर किया गया है। मतलब देखो कितने सारे फैक्टर्स आर there are so many factors incorporated with the formula in order to have a maximized value which can be I mean which can retain the less risk। मतलब कि देखो हम लोग ये स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर, इम्परफेक्शन फैक्टर, इतने सारे फैक्टर्स को इस फॉर्मूला से एडप्ट करके जो वैल्यू हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ निकलेगा वो और भी ज्यादा रिस्क फ्री, सेफ्टी, मतलब एक सेफ्टी पैरामीटर या फिर नॉट पैरामीटर मीन हम लोग बहुत ही ज्यादा माइनरली कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हुए, इनकॉर्पोरेट करते हुए हम लोग और भी ज्यादा एक्यूरेट सेफ वैल्यू को कंसीडर कर पाएंगे एज आवर कंप्रेसिव डिजाइन स्ट्रेस। ओके, तो सी दिस अल्फा एज according to that buckling classes A, B, C, D, the alpha values are given. Since we have taken the buckling class A, so we will be considering this 0.21 value. So see that 0.21 value has been considered. Now lambda z, तो पहले हमको क्या सॉल्व करना पड़ेगा? हमको एक्चुअली देखो फॉर्मूला हमारा एक्चुअल में ये है, पर ये तो पहले सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर एक एक करके ये सब वैल्यू सॉल्व नहीं करोगे। तो पहले जो है अगर तुम सॉल्व करोगे ये वाला वैल्यू लैम्डा जेड, तो फिर धीरे धीरे तुम स्टेप बाय स्टेप वो फॉर्मूला में जा पाओगे। See this lambda z, since we are solving that for the z axis, it is fy by fcc. See here it is given fy by fcc, which is fy into kl by r whole square divided by pi square e, ये whole root over में है। तो this part has been taken। fy is 250, kl is 3.5 मीटर जो कि मिलीमीटर में कंसीडर किया गया है। rz is 161.5। this we have taken from sp6। remember the value for this ISMB, see 16.15, this is in centimeter, so if we can consider it in millimeter, so this will be 161.5। तो यहाँ पे r का वैल्यू वो लिया गया है rz, यहाँ पे डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 5। जो ये वैल्यू e का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, आफ्टर पुटिंग ऑल दिस वैल्यू वी आर गेटिंग दिस। नाउ we have got the value of lambda, now we can get the value of phi since we have got alpha and lambda value, so putting all the values here we will get the value of phi to be 0.534। अब हम इजीली एफसीडी को सॉल्व कर पाएंगे। मतलब कि पहले हमको जो सॉल्व करना है वो है ये, नेक्स्ट इज our this one, so this will be 1, this will be 2 and this will be 3 and this will be our 4। तो ऐसे करके सॉल्व करते करते जाओगे तो सब तुमको वैल्यूज मिल जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंगली। तो अब हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं और लैम्डा का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। सो आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यू सी हियर, yes, after putting all the values like fy 250, gamma m naught 1.1, phi is 0.534 plus this, so putting all these value we are getting 225.2 newton per millimeter square। so for z axis mean see for this axis, this is z or x, okay, for our problem as per our problem criteria, for this axis if the our design compressive stress value has came to be 225.2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब ये इस एक्सिस पे ये हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ है इस सेक्शन का फॉर दिस ISMB 400 सेक्शन।
ओके, तो अब देखते हैं कि वाई एक्सिस पे हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ क्या आएगा। मतलब कि ये तो हमारा वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर हमारा डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या आएगा, हमको तो इस एक्सिस पे मिल गया, अब इस एक्सिस पे क्या आएगा देखते हैं। तो इस एक्सिस पे जब हम सॉल्व करेंगे, सो अबाउट वाई एक्सिस, सो सी about y-axis our buckling class was b about y-axis। तो यहाँ पे b के वजह से देखो for b it is 0.34, so now 0.34 we have considered and respectfully we have put all the values। अब ये हमारा अल्फा का वैल्यू 0.34 है, तो यहाँ पे देखो ये पहले हम लोग सॉल्व करेंगे लैम्डा। तो लैम्डा में ये हमारा के एल तो सेम है, आर यहाँ पे पहले क्या था, आर जेड था, अभी आर वाई हो गया है। तो आर वाई का वैल्यू हम SP6 से निकाले थे 28.2, तो ये यहाँ पे 28.2 आएगा। तो आप so we can put all the values corresponding here, so see we are getting lambda to be 1.39। तो लैम्डा का वैल्यू मिल गया, तो अब फाई का वैल्यू भी मिल जाएगा, सो पुट दैट वैल्यू ऑफ लैम्डा। और अल्फा जो है हमारा इम्परफेक्शन फैक्टर, जो कि हमारा बकलिंग क्लास बी के वजह से 0.34 आया था फ्रॉम टेबल 7 सी 0.34। तो ये हमारा जो है after putting all this value we will get our phi to be 1.679। okay, now हमको lambda मिल गया for y axis, phi मिल गया for y axis। now we can put all the value in fcd for y axis। तो y axis में हम fcd का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, put the value of phi and lambda, we know fy and gamma m naught, this is similar for the। तो यहाँ पे देखो हमारा वैल्यू एफसीडी का मिल गया, तो हमारा फॉर एक्स एक्सिस फॉर जेड इन हियर दिस इज गिवन एज जेड, तो जेड एक्सिस के वजह से हमारा डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 225.2 आया, और वाई एक्सिस के एक्सिस में 87.06। मतलब कि हमारे इस एक्सिस के ऊपर अगर फोर्स आएगा तो हमारा जो डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एग्जिबिटेड बाय दिस सेक्शन विल बी ऑलमोस्ट 22.5 20 यस 225 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इतना स्ट्रेस अगर इस एक्सिस पे आएगा तो वो हमारा डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहेगा। मतलब उसी स्ट्रेंथ से हम ये इस सेक्शन को हम डिजाइन करेंगे इन एक्स एक्सिस, और अगर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में आएगा तो वो हमारा डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा 87.06। जैसे कि देखो हम लोग यहाँ पे इम्परफेक्शन फैक्टर, स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर, ये सारी चीजों को रिड्यूस करके ये आया है, मतलब कि एक्चुअल कैपेसिटी हमारा इससे ज्यादा ही रहेगा। पर एज यू नो डिजाइन हम लोग कौन से वैल्यू को लेके करते हैं, सबसे कमजोर वैल्यू को लेके, ताकि वो ज्यादा वैल्यू में अच्छा परफॉर्म कर सके। अगर कम वैल्यू में आएगा तो ये सब पैरामीटर्स को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करके हमको डिजाइन स्ट्रेंथ मिल गया। मतलब कि एक खुद सेक्शन का तो एक कैपेसिटी होता है ना, तो उस सेक्शन का जो डिजाइन स्ट्रेंथ है एज पर इट्स कैपेसिटी फॉर वाई एक्सिस दिस इज, फॉर एक्स एक्सिस दिस इज this value and for y axis this is that। तो ये हमारा जो अप्रोच है, this approach is dependent upon this formulation process। मतलब इस फॉर्मूला से हमको मिल रहा है ये। अब देखो ये सेम चीज हम लोग ये जो फॉर्मूला तुम देखे हो, पहले हमको ये सॉल्व करना है। दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला वी हैव टू सॉल्व, then this is the second one। अब यहाँ पे स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर ये वाला जो वैल्यू, ये अलग से टेबल 8 में स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर ये हमको बाद में मिलेगा, आई विल शो यू दिस लेटर। पहले तो ये सॉल्व करना था, उसके बाद ये, आफ्टर गेटिंग दैट वी आर गेटिंग दिस, एंड
अल्टीमेटली अगर तुम इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमको फोर्स मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रेस में ही ये वैल्यू यहाँ पे दे के रखे हैं। ओके, अब एक दूसरा जो अप्रोच है, दैट अप्रोच इज ये सेम जो वैल्यू हम लोग निकाले, दिस सेम वैल्यू कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ टेबल। तो ये कौन से टेबल से हमको मिलेगा? देखो, तो वो टेबल से निकालने के पहले हमको कुछ वैल्यूज पहले रेडी करना पड़ेगा। वो है KL by R, which is slenderness ratio, and Fy। तो यहाँ पे हमारा KL क्या है? हमारा वो कांस्टेंट फॉर दैट कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन द सपोर्ट कंडीशन ऑफ द कॉलम इनटू दैट लेंथ, जो कि हमारा इन मिलीमीटर 3500 है। और Ry का वैल्यू क्या है? 28.2। मतलब y एक्सिस के लिए पहले सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे दिस इज इन टेबल 9B। अब टेबल 9B क्यों? देखो यहाँ पे बहुत सारा टेबल है, कैसे समझोगे कि टेबल 9 में ही होगा? जस्ट ये स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर जो मैं बता रही थी, ये मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, ये बाद में लगेगा। सी फ्रॉम टेबल 9 दिस इज द डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। देखो हमको डायरेक्टली एफसीडी मिल जाएगा इस टेबल से, उतना सारा फॉर्मूला पे जो क्लास बी का टेबल है। तो यहां से कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हम ले लेते हैं। ओके, ये गलती मत करना, ये गलती बहुत स्टूडेंट्स करते हैं। तो corresponding to this 120 130, मतलब कि हमारा जो ये दो वैल्यू है, ये हमारा 124 आया है ना, तो इन दोनों वैल्यू के बीच में लाई करेगा। और हमारा Fy 250 है, मतलब कि ये 191.7 और 81 के बीच में लाई करेगा। अब हम लोग इजीली जो न्यूमेरिकल मेथड में पढ़े थे फ्रॉम द इंटरपोलेशन, वी कैन इजीली इवेल्युएट दिस वैल्यू। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, ये जितना हमारा KL by R बढ़ता जा रहा है, मतलब 10, 20, 30, 40, 50 जैसे बढ़ता जा रहा है, देखो हमारा ये ऑपोजिट है। मतलब ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग टू 250, ये FCD जो है हमारा घटता जा रहा है। देखो 104, 91.7, 81, ये रिड्यूसिंग में है ना, ये घटता नहीं जा रहा है। जैसे विथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू KLR इट इज डिक्रीसिंग, मतलब ये ऑपोजिट में है। मतलब कि किससे घटेगा? हमारा जो वो फाइनल जो वैल्यू है वो 91.7 से घटेगा। मतलब कि हमारा 124 124.11 के कॉरेस्पॉन्डिंग का जो वैल्यू है वो इसके बीच में रहेगा, और ये 91.7 से कम होगा ऑब्वियसली। तो कितना कम हो सकता है? दैट 91.7 माइनस, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, let me just text it. Yes, so we can represent this as 91.7 minus, अब देखो हमारा रिलेशन क्या है, कैसे घटेगा? ये हमारा देखो 91.7 माइनस 81 डिवाइडेड बाई हमारा 130 माइनस 120। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया अभी, ये जो डिफरेंस ये रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस का रिलेशन क्या है? मतलब ये 91.7 को अगर जस्ट यस 91.7 माइनस 81, मतलब कि ये 10.7, डिफरेंस इज 10.7, राइट? तो ये 10.7 का डिफरेंस कौन से डिफरेंस के साथ रिलेटेड है? ये जो डिफरेंस है इसके बीच का, मतलब यहाँ पे 10 डिफरेंस में यहाँ पे जो डिफरेंस हो रही है वो है 10.7 का। तो यही मैं अगर करूं 10.7 डिवाइडेड बाई 10, क्यों?
क्योंकि ये हर 10 डिफरेंस ऑफ KL बाई आर का आर में यहाँ पे 10.7 का डिफरेंस आ रही है फॉर FCD। ओके, तो यही रिलेशन में यहाँ पे एस्टेब्लिश की। तो ये अगर 91.7 और ये 81 का जो डिफरेंस आ रहा है वो तो 10.7 है। तो ये अगर 10 के लिए डिफरेंस हो रहा है 10.7, तो एक के लिए कितना आएगा फॉर वन? सो वी कैन डिवाइड दिस, सो इट विल बी 1.07। और अगर एक के लिए 1.07 आ रहा है तो हमारा जो वैल्यू आया है वो वैल्यू कितना है? दैट वैल्यू इज 124.11, जो कि हमारे 120 से 4.11 का डिफरेंस है। तो अगर एक के वजह से हमारा ये रिलेशन है तो हमारा 4 पॉइंट मतलब कि इंटू 124.11 माइनस 120, सॉरी एक साथ लिखते हैं, तो दैट विल बी मल्टीप्लाइड बी 124.11 माइनस 120। तो ये हमारा रिलेशन होगा पूरा। ऐसे हम लोग इंटरपोलेशन से निकाल सकते हैं इसको। देखो यहाँ पे मैं दे रही हूँ। तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 87.3। देखो ये हमारा 81 के बीच में ही लाई कर रहा है, इजंट इट? तो ये हमारा 9 हर 10 डिफरेंस में यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रही है 10.7। तो 10 के वजह से अगर 10.7 है, वन फॉर वन डिफरेंस व्हाट विल बी दैट, एंड फॉर 4.11 व्हाट विल बी दैट। ये यूनिटरी मेथड से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो जो वैल्यू आएगा उसको हम 91.7 से माइनस कर सकते हैं, तो हमको ऐसे वैल्यू निकल जाएगा। देखो 87.3। अब हमारा जो फॉर्मूला के वजह से निकला था वैल्यू वो 87.06, मतलब ऑलमोस्ट क्लोजर वैल्यू मिल रहा है हमको। देखो ऑलमोस्ट क्लोज वैल्यू टू दैट। एक मिनट, ये हमारा ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट वैल्यू आ रहा है, मतलब तुम अगर टेबल से भी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही हमको एक्स एक्सिस में भी मिल जाएगा, जेड एक्सिस में भी ऐसे निकालोगे। केएल केएल वाई और जेड में तो हमारा सेम ही रहेगा 3500, और ये आर वाई के जगह पे आर जेड का वैल्यू लेना पड़ेगा। तो आर जेड का जो वैल्यू होगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा उसके रेस्पेक्ट पे हमको वो टेबल लेना है बकलिंग क्लास। और जेड एक्सिस में हमारा बकलिंग क्लास क्या था? ए था, राइट? हमारा ए बकलिंग क्लास था, तो ये वाला टेबल देखना पड़ेगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू 250 हमारा जो KL बाई आर आएगा उसको वैसे लेके उसका जो इंटरपोलेटेड वैल्यू है वो हम लोग लेंगे। वो मैं एक्सप्लेन दोबारा नहीं कर रही हूँ, ओके? तो उससे जो वैल्यू मिलेगा वो भी देखना कि इट विल बी क्लोजर टू दिस वैल्यू ऑलमोस्ट। तो हम लोग ऐसे हमारा डिजाइन स्ट्रेस इन z एक्सिस एंड y एक्सिस वी कैन गेट दिस वैल्यू। अब हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ जैसे कि मैं बताई थी, दिस इज आवर डिजाइन स्ट्रेंथ मतलब फोर्स, दिस इज इफेक्टिव एरिया इनटू FCD। अब इफेक्टिव एरिया क्या है? 7846, जो कि हमको SP6 से मिला था। ये पूरा सेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है। तो ये एरिया इनटू आवर स्ट्रेस, मतलब कि जो मिनिमम वाला है, डिजाइन एक्चुअल स्ट्रेस कंप्रेसिव, यहाँ पे जो मिनिमम वो लिया गया है, दैट मिनिमम stress has been considered which has been multiplied with the area and we have got our design strength। तो इसी डिजाइन स्ट्रेंथ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मतलब देखो हम लोग 225.2 भी यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7846 इंटू 225.2। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा हमारा 1766। तो अब बताओ ये
इस फोर्स से तुम अगर डिजाइन करोगे तो ये तो बहुत ज्यादा फोर्स है, मतलब इसका कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो इसका बहुत ज्यादा कैपेसिटी लेके डिजाइन करना फेवरेबल होगा, या फिर इसका जो कम कम कैपेसिटी है उसको लेके डिजाइन करेंगे तो हमारा ये फोर्स में भी ये पास हो जाएगा, अगर इस फोर्स में पास हो जाएगा तो। Okay, so this is our approach of the numerical problem solution of compressive member. Okay, अब इस पे किसी को कोई दिक्कत है? Anyone have any problem?